Hello friends, last time we discussed about the classification of five kingdom system. Now we discuss about kingdom Monera. Five kingdom system is proposed by American taxonomic R.H. Whitaker, according to which all organisms are classified into five kingdom, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. This system shows the phylogenetic relationship of organism. Whitaker has left viruses as they are on the border of living and non-living. He used five criteria for this system of classification, that is cell organization, body organization, mode of nutrition, lifestyle and phylogenetic relationship. All these criteria are discussed about in previous lecture. Now we discuss about the kingdom Monera. The attempts to classify living organisms began centuries ago. The first classifications were made to identify organisms that were useful to man for food, shelter, and clothing. It was Aristotle who devised the first scientific method of classification. Based on morphological characters, he classified plants into trees, shrubs, and herbs, and animals into two groups, those that had red blood and those that didn't. Later, Carl Linnaeus came up with the two-kingdom system of classification: Kingdom Plantae, that included all the plants, and Kingdom Animalia, that included all the animals. This classification system was reasonable for that time, because it was easy to distinguish between immobile plants and mobile animals. However, this system did not distinguish between unicellular and multicellular organisms, prokaryotes and eukaryotes, and photosynthetic and non-photosynthetic organisms. There were also a large number of living organisms that did not fall into any category under this system. New studies about various organisms also revealed enormous variations of characteristics within the organisms of the same group, like cell structure, mode of nutrition, methods of reproduction, and evolutionary relationships. Therefore, though the two-kingdom classification system was used for a long time, it proved to be an inadequate system recently. In 1969, R.H. Whitaker proposed a five-kingdom classification system where three more kingdoms, Monera, Protista, and Fungi, were added to the existing kingdoms of Plantae and Animalia. The main criteria that Whitaker used for this classification system were cell structure, thallus organization, mode of nutrition, methods of reproduction, and phylogenetic relationships. Phylogenetics is the study of evolutionary relatedness among various groups of organisms. The earlier classification systems included all bacteria, algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and angiosperms under the plants category, based on the common premise that each one had a cell wall in their cells. The five-kingdom classification remedied this by placing organisms in different kingdoms based on the differences in their characteristics. Based on the differences in cell wall composition, heterotrophic fungi differ from autotrophic plants and were grouped under Kingdom Fungi. All prokaryotic organisms were grouped together under Kingdom Monera, and unicellular eukaryotic organisms were placed in Kingdom Protista. Previously, unicellular Chlamydomonas and multicellular Spirogyra were placed together under algae in Kingdom Plantae. However, in the new classification system,
Chlamydomonas moved to kingdom Protista, while Spirogyra remained in kingdom Plantae. The five-kingdom classification system not only classified organisms into different groups, but also put together organisms that were earlier placed in different kingdoms. For example, Kingdom Protista brought together both Chlamydomonas and Chlorella with other eukaryotes like amoeba and paramecium, which were initially placed in Kingdom Animalia. Therefore, the five-kingdom classification system was evolved with an advancement in our understanding of the characteristics of organisms and their phylogenetic relationships. Depending on more such discoveries, the classification system may further need to be evolved in future. First, we discuss about the character of kingdom Monera. First character is unicellular organism with prokaryotic cellular organization. In kingdom Monera, all the organisms are unicellular and prokaryotic organism. Means यूनिसेलुलर का मतलब है, यूनिसेलुलर मीन्स, यूनि मीन्स सिंगल एंड सेलुलर मीन्स सेल. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. सभी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के हैं और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है. यानी कि प्रोकैरियोटिक का मीनिंग है, प्रो मीन्स प्रिमेटिव एंड कैरियोटिक का मीनिंग है न्यूक्लियस. यानी कि जो सेल के अंदर प्रिमेटिव टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है उसे बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यानी कि ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर एंड विथ प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट कैरेक्टर है दीज आर ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट का मतलब है कि all these organisms are seen in all type of environment and thus called as omnipresent. omnipresent का मतलब क्या हुआ फिर? सभी टाइप के जो इन्वायरमेंट कंडीशन है, सभी कंडीशन में ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है. यानी कि कंडीशन कौन से भी हो, एक्सट्रीम कंडीशन हो, थर्मोफिलिक कंडीशन हो, कौन से भी कंडीशन हो, सभी टाइप के पर कंडीशन में ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट. नेक्स्ट है फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट विच आर नॉट जनरली इनहेबिटेड अदर लिविंग बींग्स. फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या हुआ? सभी पर्यावरण में का जो कंडीशन है, सभी कंडीशन में वो प्रेजेंट है. वो बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट रहते हैं और सभी कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं. विच आर नॉट जनरली इनहेबिटेड बाय अदर लिविंग बींग्स. मीन्स ये जहाँ भी प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे वो कोई भी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको इनहिबिट नहीं कर सकता है. यानी कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि सभी कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं. तो उनकी कैटेगरी क्या हुई, उनके कैरेक्टर क्या हुआ कि उनके अंदर ऐसे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये सभी कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं. तो क्या है कि वो फोटोसिंथेटिक भी हैं, कीमोसिंथेटिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है. यानी कि उनके अंदर देखो कैरेक्टर दिया है, फ्यू आर फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक बट मेजॉरिटी और हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर. क्या है कि उनका नेचर ही फोटो ऑटोट्रॉपिक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक है और हेट्रोट्रॉपिक है. फोटो ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या हुआ कि वो खुद की एनर्जी खुद तैयार कर लेते हैं लाइट की वजह से. यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर के वो फोटो ऑटोट्रॉपिक है, खुद अपनी एनर्जी फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए वो सभी टाइप कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं. और दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है कीमो ऑटोट्रॉपिक है. कीमो का मतलब
सिंथेसिस यानी कि केमिकल का सिंथेसिस फॉर्म करना। केमिकल का सिंथेसिस किया, केमिकल को डिग्रेडेशन किया तो उसके अंदर से एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी वो खुद फॉर्म कर लेते हैं केमिकल का डिग्रेडेशन करके, इसलिए उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, कीमो ऑटोट्रॉपिक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पहला जो बोला था फोटो ऑटोट्रॉपिक, मीनिंग क्या हुआ, न्यूट्रिशन के लिए वो लाइट के ऊपर डिपेंड है, लाइट का सिंथेसिस करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब है कि वो खुद केमिकल का सिंथेसिस करते हैं और उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और तीसरा है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि दूसरे के बॉडी में से वो अपना न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो ये तीनों कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए वो सभी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। और जहाँ पे जनरली जहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म है, अगर वो जहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके पास गया तो वो उसको इनहिबिट नहीं कर सकता, उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता, और तभी वहाँ पे वो प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं कि जनरली इनहिबिटेड बाय अदर लिविंग बींग्स फॉर फोटो ऑटोट्रॉपिक्स और कीमो ऑटोट्रॉपिक्स और हेट्रोट्रॉपिक्स। अभी हमने किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर देखे, अभी ये कैरेक्टर हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर डिटेल्स में फर्स्ट कैरेक्टर है नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। डीएनए इज सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम कॉल्ड इज न्यूक्लियड्स। इसका मीनिंग हुआ दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस due to lack of nuclear membrane, but it is in the form of nucleids. Nucleid consist of DNA in the form of simple double stranded circular single chromosome. मीनिंग क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो नॉट वेल डिफाइन है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो डेंस बॉडी नहीं है। तो क्या हुआ, जो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर फॉर्म में है। तो ऐसे स्कैटर फॉर्म में न्यूक्लियस का मटेरियल स्कैटर फॉर्म में, तो उनको हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस सेल के अंदर है तो सेल क्या हो, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है। कैरियोटिक का मीनिंग क्या हुआ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रिमिटिव है जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, लेकिन इसके अंदर इसलिए उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियाइड। और न्यूक्लियाइड कंसिस्ट करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स जो सिंपल है, डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर फॉर्म में है क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी तक पढ़ा है कि डीएनए जो लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन वो सर्कुलर फॉर्म में है और सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसलिए उसे हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इसलिए हमने बोला कि नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसलिए हमने क्या बोला, न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड। और बोला डीएनए इज ए सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स कॉल्ड एज प्लाज्मिड आर ऑफन प्रेजेंट। अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर डीएनए स्कैटर फॉर्म में प्रेजेंट है जो सिंगल है, सर्कुलर क्रोमोसोम है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैट्रिक्स है। Also plasmids are present which are smaller circular molecule of DNA as a extra chromosomal genetic elements। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है प्रेजेंट डीएनए का, इसे
प्लाज्मिड ऐसे बोलते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में है, स्मॉलर है, छोटा सा है, सर्कुलर फॉर्म में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, क्योंकि इसके अंदर भी डीएनए की जैसी कैपेसिटी है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है और जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स ऐसे बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स जो है वो स्मॉलर स्ट्रक्चर है और वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, इसलिए से प्लाज्मिड ऐसे बोलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट कैरेक्टर है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन also called as murin, which is a polymer of sugar and amino acid. यहाँ पे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन क्या है? ये म्यूरिन का स्ट्रक्चर है। पेप्टिडोग्लाइकिन एक ग्लाइकोजन और प्रोटीन्स, शुगर मॉलिक्यूल्स से जो म्यूरिन केमिकल बनता है उससे जो स्ट्रक्चर बनता है सेल वॉल का, उसे पेप्टिडोग्लाइकिन ऐसे बोलते हैं। और ये पेप्टिडोग्लाइकिन क्या है कि पॉलीमर ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की अगर हम पॉलीमर चेंज देखते हैं, अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल देन नेक्स्ट सिंगल मॉलिक्यूल देन नेक्स्ट सिंगल मॉलिक्यूल, ऐसे नंबर ऑफ अमीनो एसिड अगर हमने ज्वाइन कर दिए तो ये हो जाती है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकिन का मतलब क्या हुआ कि पेप्टिडोग्लाइकिन, ग्लाइकिन मीन्स ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ये पॉलीमर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल से, शुगर पॉली का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ, और मर का मतलब हुआ सिंगल मॉलिक्यूल्स। ऐसे नंबर ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स एक साथ बॉइंड हुए तो उससे मॉलिक्यूल जो तैयार होता है वो मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजन, और जो ग्लाइकोजन फॉर्म हुआ उसका साथ अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अटैच हो गया। तो क्या हो गया? ये अमीनो एसिड का एक एंडिंग पार्ट और शुगर मॉलिक्यूल का एक एंडिंग पार्ट, शुगर मॉलिक्यूल का HO का मॉलिक्यूल्स और अमीनो एसिड का N जो है टर्मिनल एंड जो है वो एक दूसरे के साथ बाइंड हुए तो क्या हो जाता है कि उसका रेसिड्यू तैयार होता है, और दो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो रेसिड्यू फॉर्म हुआ उससे बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकिन। अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेंज हो गई तो वो पेप्टिडो चेंज हो गई, और ग्लाइकोजन की चेन फॉर्म हो रही है, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल से बाइंड हो रहे हैं, इसलिए इसे बोलेंगे पेप्टिडोग्लाइकन। और जो रेसिड्यू फॉर्म होता है वो वही रेसिड्यू जो है वो म्यूरिन है, और म्यूरिन का मॉलिक्यूल्स को ही पेप्टिडोग्लाइकन ऐसे बोलते हैं। तो सेल वॉल किससे तैयार हुई? पेप्टिडोग्लाइकन से तैयार हो गई। अभी जो सेल वॉल जो तैयार हुई है वो किससे तैयार हुई? फिर पॉलीमर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स एंड अमीनो एसिड से तैयार हो गई। अभी नेक्स्ट कैरेक्टर है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर एब्सेंट। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइन नहीं है, यानी कि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो डीएनए मॉलिक्यूल स्कैटर फॉर्म में है, तो उसके सेल के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अलग अलग ऐसे ऑर्गेनेल्स जो हैं जिसके ऊपर कवर प्रेजेंट रहता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, वो मेम्ब्रेन यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर ही एब्सेंट है। तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे क्या? वो यहाँ पे एब्सेंट है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला हमने? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज देन इन यूकैरियोटिक सेल। अभी देखो
यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, जिसके जे सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइन है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ऐसा जो न्यूक्लियस जे सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो सेल को हम यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल बोलते हैं। तो सेल के दो टाइप हो गए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मीनिंग हुआ प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो प्रोकैरियोटिक, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो सेल के अंदर है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे दो टाइप के सेल हो गए। तो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल सिर्फ किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट है, यहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक टाइप के प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पूरे यहाँ पे अब्सेंट है। और दूसरा जो राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज, राइबोसोम मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक के अंदर 80S टाइप का प्रेजेंट रहता है। इसलिए यहाँ पे बोला राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज 70S देन इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल के अंदर राइबोसोम ये स्मॉलर साइज में रहता है, यानी कि 70S टाइप रहता है, और यूकैरियोटिक के अंदर 80S टाइप रहता है। अभी नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल, बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग। वेरी रेयरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द कॉन्जुगेशन मेथड। अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो किंगडम मोनेरा है इसके अंदर जो सभी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके वो रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मोनेरा रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मोड सच एज बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग। रेयरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन मेथड इट्स सीन। मीन्स क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है। रिप्रोडक्शन है दो टाइप के, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन असेक्सुअल के अंदर सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि किंगडम मोनेरा के अंदर सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है बाइनरी फिजन और बर्डिंग। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल है। अगर उसका डबल फॉर्मेशन हुआ तो न्यूक्लियस का क्या होगा, वो जो मैटर है वो डिवाइड हो जाएगा, एक क्रोमोसोम एक सेल के अंदर और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल के अंदर। तो सेल की जो बॉडी है वो कॉन्जुगेट टाइप हो जाएगी। मीन्स किंगडम मोनेरा के अंदर के सभी ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन फॉर्म करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप में होता है, एक बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग। तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या है कि एक सेल जो है वो डिवाइड होती है दो सेल में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, इसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। और बर्डिंग का मतलब है सेल के ऊपर बर्ड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होना, इसे बोलेंगे बर्डिंग। और वो जो बर्ड फॉर्म होता है वो मैच्योर हुआ कि उस सेल से अलग हो जाता है और नेक्स्ट लाइफ फॉर्म करता है, तो इससे वो रिप्रोड्यूस हुआ। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया, बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग टाइप हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय कॉन्जुगेशन मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कॉन्जुगेशन मेथड से होता है। अभी देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन बैक्टीरिया दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। अभी आर्कीबैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्कीबैक्टीरिया क्या है, आर्कीबैक्टीरिया एक ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। इसका फर्स्ट कैरेक्टर है डिफरेंट सेलुलर फीचर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया।
जो बैक्टीरिया में मिलते हैं नेचर में, वो बैक्टीरिया से ये आर्कीबैक्टीरिया का नेचर जो है वो डिफरेंट है। उनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है इसके अंदर डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? वो मोस्टली फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एंड they are simple in their organization and they do not made up of murine and archibacteria are not pathogenic। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आर्चीबैक्टीरिया है वो आर्चीबैक्टीरिया ओल्डेस्ट है, वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में फाउंड होते हैं और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी नहीं है, तो सिर्फ सेलुलोज से बनी है। इसका मतलब हुआ कि पेप्टिडोग्लाइकेन यहाँ पे अब्सेंट है। और दूसरा कि सेल आर्कीबैक्टीरिया ये नॉट पैथोजेनिक है, यानी कि वो हार्मफुल नहीं है। ऐसे जो बैक्टीरिया है इसलिए ये डिफरेंट फॉर्म करते हैं, डिफरेंट सेलुलर फीचर फॉर्म करते हैं। इसके बाद फाउंड इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हेंस टर्म एज एक्सट्रीमोफिली। एक्सट्रीमोफिली का मतलब क्या हुआ कि जो आर्चीबैक्टीरिया है ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन में सर्वाइव करते हैं और उनकी जो एबिलिटी है सर्वाइव फॉर्म करने की, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू सर्वाइव इन द hostile environments and they can be seen in place like high salinities or extreme temperature, therefore they are termed as the extremophilous। extremophilous का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म जो है आर्कीबैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर एबिलिटी है ऐसे कंडीशन में सर्वाइव करने की। वो सैलिनिटी कंडीशन में भी फॉर्म होते हैं, वोल्केनिक कंडीशन में ही फॉर्म होते हैं और हॉट स्प्रिंग में ही फॉर्म होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफिलस। और सीवियर कंडीशन है उसके अंदर भी वो फॉर्म होते हैं। दैट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हाई सैलिनिटी आर कॉल्ड एज हेलोफिलिस। जो बैक्टीरिया हाई सैलिनिटी में प्रेजेंट रहते हैं इनको हेलोफिलस बोलते हैं, और एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर जो फॉर्म होते हैं यानी कि हॉट टेम्परेचर में जो रहते हैं उनको थर्मोफिलस बोलते हैं। और जो फाउंड इन गट ऑफ रूमेनाइट्स मेथेजेनिक। अभी देखो रूमेनाइट्स का मतलब क्या है कि जो कैटल ऑर्गेनिज्म है, बफेलोज है, बुलक है, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है हमने देखे हैं कि जब वो रेस्टिंग करते हैं उस टाइम उनके मुंह में से कुछ सिक्रेशन होता है। क्या वो जो सिक्रेशन होता है जो क्या करते हैं कि पूरे दिन पूरा फूड मटेरियल उनके कैपेसिटी से भी ज़्यादा अंदर ले लेते हैं। और जो रूमेनाइट्स एनिमल जो है उसके गट के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहे उनको बोलते हैं मेथोजेनिक बैक्टीरिया। ये जो मेथोजेनिक बैक्टीरिया फाउंड इन द गट ऑफ रूमेनाइट्स सच एज काउज एंड बफेलोज। रूमेनाइट्स एनिमल कौन से हुए? काउज एंड बफेलोज। दिस बैक्टीरिया पास आउट इन द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। ये एनिमल के डग के अंदर ये बैक्टीरिया पास आउट होते हैं, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। देयरफॉर इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस काउ डग इज यूज। अभी नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है अभी हम पढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया का मतलब है also referred as ट्रू बैक्टीरिया। अभी देखो ये बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि दिस बैक्टीरिया आर फाउंड इन नेचुरल इन्वायरमेंट्स। ये बैक्टीरिया नेचुरल इन्वायरमेंट्स में फॉर्म होते हैं। और यू बैक्टीरिया आर मोर कॉम्प्लेक्स दैन आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया से ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और उसकी जो सेल वॉल है ये सेल वॉल म्यूरिन से यानी कि पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है, इसलिए
ये जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया से डिफरेंट है और इनको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। अभी ये जो बैक्टीरिया है, दो टाइप के बैक्टीरिया है, एक ऑटोट्रॉप और दूसरा हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग क्या है कि जो अपना न्यूट्रिशन खुद बना लेते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप, और जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो हम अभी पढ़ते हैं ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉप यू बैक्टीरिया। अभी हमने यू बैक्टीरिया के कैरेक्टर देखे कि यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, और ऐसे जो ट्रू बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है और सेल ये प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है। बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की, वो बॉडी कवर करती है एक शीट से, जिसे हम म्यूसिलेजिनस शीट ऐसे बोलते हैं। जो म्यूसिलेजिनस का मतलब क्या हुआ कि अगर बॉडी को हम टच करें तो वो अपने हाथ में सॉफ्ट जैसा लगते हैं। वो वाटर लिविंग फ्रेश वाटर के अंदर रहती है, तो क्या हुआ कि उसका जो कवर है, वो जो कवर हमें हाथ लगाने से स्मूथ लगता है, उसे म्यूसिलेजिनस शीट ऐसे बोलते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के ऑटोट्रॉप है और हेट्रोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप का मीनिंग बताया। ऑटोट्रॉप का ऑटो मीन्स सेल, जो और ट्रॉप का मीन्स है न्यूट्रिशन ट्रैप करना। जो अपना न्यूट्रिशन सेल फॉर्म करते हैं उनको ऑटोट्रॉप बोलेंगे, और जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे उनको बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म है, सम फोटोसिंथेटिक है और कीमोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक का मतलब जो लाइट का सिंथेसिस करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, और कीमोसिंथेटिक का मतलब है केमिकल का सिंथेसिस करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है लाइक क्लोरोबियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड क्रोमेटियम। और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस फॉर्म लिविंग इन फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो कैसे है? मल्टी सेल्यूलर एंड फिलामेंटस है। तो क्या हुआ कि जो सेल जो है, एक ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वो उसके ऊपर दूसरी सेल है और उसके ऊपर दूसरी सेल है, तो क्या हुआ कि एक लॉन्ग स्ट्रक्चर तैयार हो गया, उसे बोलते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो मल्टी सेल्यूलर क्या हुआ? नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट हो गए, एक के ऊपर एक फॉर्म हुए, तो सेल के कितने हो गए? नंबर ऑफ हो गए, इसलिए इसे बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस। अभी ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पे प्रेजेंट है? फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर बॉडी के ऊपर क्या हो गया कि सभी ऑर्गेनिज्म एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, एंड बाय एंड प्रेजेंट है, और उसके ऊपर जो म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। इसलिए यहाँ पे लिखा है बॉडी इज कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीट, जेनेटिक मटेरियल्स टिपिकल प्रोकैरियोटिक। तो म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट है और जेनेटिक मटेरियल ये प्रिमिटिव फॉर्म में यानी कि प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है, और ये फोटोसिंथेटिक है। लाइट का सिंथेसिस करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन्स है और ज़ैंथोफिल्स है। दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स हैं, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और फिर उसका कन्वर्शन किया जाता है, यानी कि उसके सिंथेसिस होती है और वो एनर्जी फॉर्म करते हैं। और जो फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है, फिलामेंटस शोज हेट्रोसिस्ट विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी जो सेल जो है एक के ऊपर एक एंड बाय एंड ये फॉर्म हुई है, तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो गया। तो एक सेल के अंदर एक हेट्रोसिस्ट नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, वो स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेट्रोसिस। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन वहाँ पे ट्रैप होता है, फिर उसका कन्वर्शन नाइट्रेट और नाइट्राइट में होता है, इसलिए उसे बोलते हैं हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच इज़ हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन।
देन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स. फिलामेंटस शोज हेट्रोसिस्ट विच इज हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया के टाइप्स में सेकंड टाइप है हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स का मतलब, हेट्रो का मतलब है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना. उसका फर्स्ट कैरेक्टर है मोस्ट ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स. इसके जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजर्स है, दूसरे प्लांट्स जो एनिमल और प्लांट्स जो है उनका जो डेड मटेरियल रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसको डिकेइंग करते हैं और फिर उसमें से अपना न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर लेते हैं. इनको बोलते हैं डीकम्पोजर्स. और नेक्स्ट है दे कैन बी अनएरोबिक. दे कैन बी अनएरोब्स, यानी कि दे अनएरोब्स है, यानी कि उसके अंदर कैपेसिटी है रेस्पिरेशन की, जो विदाउट ऑक्सीजन वो रेस्पिरेट करते हैं और अपने एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. फर्स्ट है उसमें हेल्पिंग इन कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये यूजफुल बैक्टीरिया है और कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया है. तो जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो क्या है करते हैं, हेल्पिंग इन कर्डिंग ऑफ मिल्क. Bacteria that convert milk into curds, that is lactobacillus, are used in food industries. Next time fixation of nitrogen, azotobacters. Nitrogen fixing bacteria such as azotobacter, nitrosomonas, rhizobium, etc. are the very helpful in nitrogen fixation. They provide nitrogen from the soil in the leguminous plant. अभी देखो जो लेग्यूमिनस प्लांट है, ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फॉर्म करते हैं. कैसे फॉर्म करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म के अंदर हेट्रोसिस नाम का जो ऑर्गन प्रेजेंट रहता है उसमें एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन एब्सॉर्ब होता है और उसको सॉइल के अंदर डिग्रेडेट कर देते हैं. तो नाइट्रेट और नाइट्राइट में उसे डिग्रेडेट करते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. नेक्स्ट है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. अभी बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. जो ऑर्गेनिज्म है एंटीबायोटिक्स फॉर्म करते हैं क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैट्रिक्स प्रेजेंट है. इसकी वजह से यहाँ पे एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन फॉर्म कर सकते हैं ये बैक्टीरिया. नेक्स्ट है कंपोस्टिंग एंड डिग्रेडिंग ऑयल. बैक्टीरिया आर यूज इन डिग्रेडेशन ऑफ crude oil. Example है Pseudomonas species and also in the decomposition process to prepare the compost. अभी देखो जो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पर जो डग प्रेजेंट रहता है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. एग्जाम्पल है Pseudomonas स्पेसीज. ये ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसका डिग्रेडेशन करते हैं और उससे क्रूड ऑयल फॉर्म करते हैं और वो मटेरियल को डिकम्पोज करने का फॉर्म करते हैं. उसके बाद है बायोगैस प्रोडक्शन इज डन बाय मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. रुमिनेंट्स एनिमल जो है उनके गट में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं तो उसके जो डंग है उसके अंदर वो पास आउट होते हैं तो उसका डिकम्पोजर हुआ तो उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस फॉर्म कर सकते हैं. सम ऑफ देम आर पैथोजेंस. अभी कुछ बैक्टीरिया है वो पैथोजिन फॉर्म करते हैं यानी कि बैक्टीरिया है हार्मफुल बैक्टीरिया है. Different type of disease are caused due to the pathogenic bacteria in human, animal and also plants. Human, animal and plants सभी को ये बैक्टीरिया हार्मफुल, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ये हार्मफुल है, उनको डिसीज फॉर्म करते हैं जैसे कि टाइफाइड है, कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, टिटनेस है, लेप्रोसिस है, बेसिल ये डिसेंट्री है आर द वेरियस डिसीज
that infects the human beings, and plant disease such as galls and overgrowths, wheals, lip spots, speaks and blight, soft rots, as well as scabs and cankers are the produced by bacteria. Most plant pathogenic bacteria belong to the पेक्टोबैक्टीरिया में, पेंटोइया है, एग्रोबैक्टीरिया में। तो जो प्लांट्स को डिसीज फॉर्म करने वाले बैक्टीरिया के नाम बताए एग्रोबैक्टीरिया में, और उसके अंदर डिसीज फॉर्म करते हैं प्लांट के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर डिसीज फॉर्म करते हैं। कौन से डिसीज हैं? टाइफाइड है, कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, टिटनेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या हुआ? ये सभी ऑर्गेनिज्म ये हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है और ये हेट्रोट्रॉप्स है। Bacteria are the sole members of kingdom Monera. Bacteria can be found anywhere, including extreme habitats like hot springs, deserts, and deep oceans. Different bacteria synthesize their food in different ways. Some of them are autotrophs. That is, they synthesize their own food from inorganic substrates. However, a majority of them are heterotrophs. That is, instead of synthesizing their own food, they depend on other organisms or dead organic matter for food. Based on their shape, bacteria can be classified into 4 types: the spherical coccus, the rod-shaped bacillus, the Vibrio, which is in the shape of a comma, and the spiral Spirillum. There are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and, if motile, a flagellum. Cyanobacteria, commonly known as blue-green algae, are examples of eubacteria. They are unicellular, filamentous algae that live in colonies. Their colonies are usually surrounded by gelatinous sheaths. Bacteria can be divided into autotrophs as well as heterotrophs. Autotrophs can further classified into photosynthetic autotrophs and chemosynthetic autotrophs. Like plants, cyanobacteria have chlorophyll A, and they are, like them, photosynthetic autotrophs. That is, they synthesize their food by using light energy. Did you know cyanobacteria like Nostoc and Anabaena can also fix atmospheric nitrogen in their specialized cells called heterocysts? Chemosynthetic autotrophs oxidize various inorganic substances such as nitrates or ammonia and use the energy released for ATP production. They help in recycling nutrients like nitrogen, sulfur, and phosphorus. On the other hand, heterotrophic bacteria are decomposers. They help us make curd, fix nitrogen in legumes, and produce antibiotics. They can also cause harm by damaging crops. And some diseases like typhoid, tetanus, and cholera are known to be caused by bacteria. Bacteria reproduce by fission. They can also reproduce sexually by a primitive DNA transfer from one bacterium to another through the pilus. Under unfavorable conditions, bacteria produce spores. Apart from eubacteria,
There are special bacteria called archaebacteria that live in extreme conditions. For example, halophiles live in extreme salty areas. Thermoacidophiles live in hot springs, while methanogens live in marshy areas. Methanogens are also present in the gut of ruminant animals as cows and buffaloes. These bacteria are responsible for the production of methane, also referred to as biogas, from the dung of these cattle. All archaebacteria have a different cell wall structure than other bacteria, which helps them to survive in extreme conditions. Unlike eubacteria and archaebacteria, mycoplasmas are the bacteria that do not have a cell wall. They are also smallest living beings ever known who can survive without oxygen. They are pathogenic in animals and plants. Kingdom Monera, therefore, consists of eubacteria, archaebacteria, and mycoplasmas.